Yes. Hello and chukke. Welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स और मुबारक हो पाकिस्तान, बहुत मुबारक हो. Congratulations to Pakistan and Pakistani fans all around the world celebrating right now. And we have a super exciting pavilion set up for you. You're watching Sports 10 Sports and the ARY Zap app. And the news out of Sydney is that the boys in green are heading into the final, baby. Yes, we're heading into the final. With me in the pavilion are four extremely happy campers. I've got the monuments of game of cricket, the gentlemen who've served our nation really well. And today they're very proud of our Shaheens who outdid New Zealand in Sydney. I've got the young and dynamic Shoaib Malik. Welcome, Shoaib. All right, Shoaib. Okay, let's see what happens next. I've got the Mr. Dependable, Mr. Reliable, Mr. Dashing today, Misbah Haq. Misbah. Thank you. Assalamualaikum. Okay. अपना ही गैंगस्टर वाला एक अपना ही टोटल माहौल है टोटल मिसबा का. I've got the toe crushing, batsman terrorizing, the Mr. Wonderful, Waqar, Younis, Waqar. Yeah. Happy. Well done. And I have got the Sultan himself, the GOAT, the legend of all legends. I've got the very happy Wasim Akram. Yay. Yo. और आइए दोस्तों, इस नाबीना ट्रांसमिशन में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं और हमें नजर सब आ रहा है, ठीक है ना. एंड एक्चुअली here's the situation. Let's take a look at the scorecard first. This is the match summary on your screen. This is how it went down. It was a good toss to lose for Pakistan क्योंकि न्यूजीलैंड ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि टॉस बड़ा मैटर करेगा. Yes, it does matter, but today was not the day. It was New Zealand batting first. It did put up a good total, 152 for 4. But Shaheen Shah Afridi there, 2 for 24, and Nawaz 1 for 12 with 2 overs. A good all-round performance by the Pakistani bowling unit. And a good, he's back in form, back in nick. Some of those cover drives you would always, admire no matter where you are in the world. 53 of 42 deliveries. And then it was that young dynamite, Mohammad Haris, who contributed with a 30. And it was all over for New Zealand. Bolt and Santner. And it is now the road to final for Pakistan. This is how it is. Tomorrow is the second semi-final. Pakistan are through and ready for the 13th of November in Melbourne. Who is it going to be from the other group? It is going to be in India versus England. Semi-final tomorrow. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. But let's talk about the game that we have today. Congratulations, Wasim. What a great win for Pakistan in the semis. Unbelievable scenes in the green room. Unbelievable scenes होंगे पूरे पाकिस्तान में. Unbelievable scenes होंगे at the SCG. And I've seen the picture after the game. तो एक दूसरे के लोग hug कर रहे थे, प्यार कर रहे थे. This is the beauty of Pakistani cricket. We are in the finals of the World Cup. We don't care who we play in the finals now. Yeah. And I think psychologically, excuse me, हमने सुबह भी कहा था कि पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल एज है न्यूजीलैंड पे. चारों के चारों सेमीफाइनल वर्ल्ड कप्स में हम उनसे जीते हैं. बिल्कुल ऐसी बात है. और सुबह भी यही बात हो रही थी. मैंने कहा उधर उस दफा भी 92 में भी इन्होंने पहले बैटिंग की थी. Exactly. And that's what they did. They chose to bat today first. Waqar, was it a good toss to lose, and were New Zealand surprised by the way that pitch was behaving in the first innings? फखर मैंने कोई होमवर्क नहीं किया. I'm really sorry because मैं was just too excited. और दूसरी एक चीज़ और है, शेबी मेरे साथ था, चल्ला हो गया. सारी चीज़ें धर्म भरम कर दी हैं नीचे इसने, यानी कि जमा कर दी. मुझे एक बात बताएं, अगर आज भी धर्म भरम नहीं करनी तो कब करेंगे? Exactly. I know, ये भी है. That's No, it was World Cup finals, man. Yeah, we are in the finals. Huge deal. It is huge because Misbah, I mean, guys, we were thinking the team is coming back home. We were a little dejected, a little disturbed, and then look, miracles do happen. And here we are. कुदरत का निज़ाम. मैं आपको आखिर तक कहता रहा था ये तो आप थोड़ा सा परेशान थे कि नीदरलैंड कैसे जीतेगी साउथ अफ्रीका से. तो आई थिंक ऐसे चीज़ें बदलते देर नहीं लगता. Guys, we were thinking the team is coming back home. We were a little dejected, a little disturbed, and then look, miracles do happen. And here we are.
कुदरत का निज़ाम। मैं आपको आखिर तक कहता रहा था ये तो आप थोड़ा सा परेशान थे कि नीदरलैंड कैसे जीतेगी साउथ अफ्रीका से। तो आई थिंक ऐसे चीज़ें बदलते देर नहीं लगती क्रिकेट में स्पेशली। और जब आपको ऐसा मौका मिल जाता है, 92 ऑब्वियसली एग्जांपल देते हैं हम, 2009 की एग्जांपल देते हैं, वी वर नॉट प्लेइंग दैट वेल, और सडनली जब आपको कोई नज़र आता है रास्ता, दैन यू आर टोटली अ डिफरेंट टीम। सो आई थिंक आज का भी अगर मैच देखें ओवरऑल, पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, बट आई थिंक जो लक फैक्टर भी था वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ था। तो ओवरऑल सारी चीज़ें सही तरफ जाती हुई आपको नज़र आती हैं जब लगता है कि अब डेस्टिनी जो है ना आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू। आई नो द स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर पाकिस्तान। शोएब, आपने मुसलसल कहा कि वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम, हमें फिन को न्यूट्रलाइज करना होगा, कॉनवे को न्यूट्रलाइज करना होगा, एंड इंटरेस्टिंगली वी गॉट फिन राइट अप। शाहीन शाह अफरीदी वाज जस्ट टू मच for Finn, and then we also got rid of Conway, and it looked like Williamson played a very important role. काफी steady कर दिया था उन्होंने ship, but I think the strategy of winning the power plays, I think we won both the power plays today. Would you agree? Yes, of course, and as I said beginning of our pre-show कि first 6 overs in batting and bowling दोनों जो है उसमें उनका प्लान जो है उनको तोड़ना पड़ेगा, और वो हम लोगों ने किया। और आई गेस फिन एलन की विकेट वाज वो ये था आइस ऑन द केक, कि जिस पे जो है मैं समझता हूँ कि एकदम जो है ना वो ऐसा मैसेज किया उनके ड्रेसिंग रूम में कि यार लेट्स एटलीस्ट गेट टू 150। और अगर हम देखें कॉनवे भी आउट हुए, रन आउट शादाब ने बहुत अच्छा रन आउट किया, और वो पावर प्ले का बिल्कुल लास्ट वाला आई गेस बॉल था जिससे जो मोमेंटम था वो हमारी तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि एक नया बैटर आएगा और जैसे पावर प्ले खुला है वैसे ही उन्होंने स्क्वीज इन जो है वहाँ पे हो गए। लेकिन न्यूजीलैंड मुझे लगा ही नहीं कि किसी टाइम पे भी दे वर टारगेटिंग टू स्कोर 170 180, दे वर हैप्पी टू गेट टू 150। और ये मेरे ख्याल में इस पिच पे आज इतना आसान नहीं था, नोइंगली कि जो रिजवान और बाबर हैं दुनिया के किसी कोने में भी खेल रहे हों, जब ये ओपन करेंगे एनीथिंग अराउंड 150 इट्स देयर गेम। इट इज देयर गेम। यस वकार, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने मुझसे सवाल किया, मेरा हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं था कि मैंने होमवर्क नहीं किया, कि मतलब कि मैं जस्ट लिटिल एक्साइटेड एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड एंड वेल डन गाइस, वेल डन बॉयज, ग्रेट जॉब। आई मीन लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लॉट ऑफ बहुत सारी बातें हुई हैं, but you proved everyone wrong. You guys are the superstars. I mean, Pakistan in the finals of the World Cup in Australia. Inshallah, history is gonna repeat again. Inshallah, on the 13th, and there's plenty to talk about. How the two openers played. They were just too good. I think the major bulk of the सबसे important चीज़ जो मैं शुरू में सुबह भी आज बात की थी कि जो हमारी बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का सबसे बेहतर बॉलिंग अटैक है, और आज भी प्रूव किया। वो इसलिए नहीं मैं कह रहा था कि ख़राब बॉलिंग नहीं करते, बिकॉज जब रिवर्स स्विंग हो रहा होता है और जब स्लो पिच होती है तो जो पेस वाला बॉलर होता है उसका जो स्लोअर वन होता है वो दैट बिकम्स वेरी लीथल। और आज जिस तरीके से बॉलर्स ने उस स्लोअर वंस को यूज़ किया, पिच को रीड किया, I think it was just great to see the plans really executed really well. Nothing went wrong. I mean, everything was just perfect. Our day. Yeah, simple. It actually जो हमारा साउथ अफ्रीका वाला मैच था, फेमस लाइन है पिलान के मुताबिक, बिल्कुल मेरा ख्याल है पिलान के मुताबिक से भी ज्यादा बेहतर हुआ है आज तो मामला। वसीम, I mean convincing win too, not a close game. The way they came out, Pakistan team toss हारे, उसके बाद everybody was worried, cricket loving country we are, कि यार क्या होगा अगर वो 170 कर गए, 150 कर गए, चेज नहीं होगा। बट मुझे लगा गाइस अ क्वेश्चन कि अंडर लाइट्स विकेट्स थोड़ी सी शायद बेहतर हो गई थी, यहाँ के वो अंडर प्रेशर थे न्यूजीलैंड की टीम। मैंने जो देखा वसीम भाई, जब स्पेशली स्पिनर्स आए हैं राइट आफ्टर द पावर प्ले, उसके बाद वो बहुत, एक तो उन्होंने अच्छी जगह पे बॉलिंग नहीं की, न्यूजीलैंड के जो बॉलर थे सेंटनर एंड सोटी, सेनेटर ने बहुत अच्छा खुश बहुत, तो वो कभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे, और जब आगे गिरता था बॉल तो वो ऑफलाइन गिर जाता था, या टांग पे गिर जाता था,
या ऑफ साइड पे गिर जाता था और बैट्समैन को टाइम मिलता था। वो स्लो होने की वजह से हमें स्ट्राइक रोटेशन में बहुत ईजी रहा और वो सूट भी किया रिजवान और बाबर के गेम में, उनके गेम को। और अच्छी चीज़ ये थी कि दोनों बैटिंग करते हुए आ रहे थे तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ। हाँ, अगर आउट होते तो प्रॉब्लम हो सकता। पाकिस्तान की बैटिंग का जब पहला बॉल डिलीवर हुआ था ना, दैट रियली सेट द टोन। जो वो अपना रिजवान ने जो बाउंड्री मारी ना पहली बॉल पे, दैट रियली सेट द टोन। The message was very clear to our own dressing room and to the other team that we're coming after you. We're not gonna bog down. This is no problem for us, and that's the way I think team should play. And Babar was attacking. He was little lucky on the first ball, but yeah, luck favors the brave. Simple as that. So मिसबा भाई ने भी कहा था कि रिजवान को थोड़ा कवर्स में खेलना चाहिए और वही हुआ। आज के 2-3 शॉट्स लगे कवर्स में and then he became a totally different batsman. Aaj, he went after the ball on the offside and he just looked unstoppable. बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। जैसे वो थोड़ा सा चौथी पांचवीं स्टंप पे अटैक कर रहे थे सारे बॉलर्स और वहीं से वो उसको कैच नहीं कर पा रहे थे, तो इजी हो रहा था बॉलर्स के लिए। आई थिंक ये पहले शॉट ने ही प्रेशर डाल दिया और फिर वो उनकी स्ट्रेंथ पे आए। वो जो चौके, फिर उसके बाद ये 2 शॉट है अगर आप देखें अर्ली ऑन, एंड देन फिर वो अपनी स्ट्रेंथ पे आया जब बॉलर थोड़ा सा उधर से बचने के लिए गया है और उसने उसको फिर कैच किया। तो जब आप डिफरेंट एरियाज़ में खेलते हैं तो फिर ये आपका एडवांटेज होता है कि आपको बॉलर कहीं ना कहीं बॉल देता है। आई थिंक हेड्स ऑफ टू देम, इतने अंडर प्रेशर मैनेजमेंट जो भी लोग हैं जिन्होंने उनको कन्विंस भी किया, उनके साथ बात भी की होगी, फिर उनका इतने प्रेशर गेम में आके परफॉर्म करना, बिलीव रखना अपने आप पे। आई थिंक इट वाज द परफेक्ट स्टार्ट फॉर पाकिस्तान इन बॉलिंग एंड बैटिंग। बॉलिंग में इतने इंपॉर्टेंट प्रेशर गेम में पहला पंच हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरी ट्रू। और फिर फिन एलन जैसे प्लेयर को जो कि इस प्रेशर से उनको निकाल सकता था, शाहीन ने पहली गेंद पे चौके के बाद भी फिर चांस लेना अगली 2 बॉलों पे और आउट करना। वो कि बहुत सारे लोग हम सोच रहे होंगे नहीं ये पिच स्लो है, इधर नहीं करना चाहिए, बट वो अपनी स्ट्रेंथ पे उसने बॉल किया और उस विकेट ने मुझे लगता है वो जो टोन सेट की पाकिस्तान के लिए थ्रू आउट, उस प्रेशर से निकली नहीं न्यूजीलैंड। वो दब के खेले हैं, वो 150 से ऊपर निकले। ये पहला चौका पड़ा जो आपने बोला था, फिर ये रिव्यू हुआ था फिर and this was ये क्रॉस गया और इसने फिर आगे बॉल किया। That's what Misbah is talking about. It's very brave. It's very brave. I mean, बहुत आला बॉलिंग जो एरिया था उसमें बॉल करके अंडर प्रेशर, क्योंकि पहली विकेट इतने बड़े मैच में सेटल डाउन होने का टाइम नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान की भी गिरती विकेट इतनी जल्दी तो मुश्किल होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग में भी पाकिस्तान ने जो ऊपर से टोन सेट की है ये बड़े मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना प्रेशर में ये स्कोर भी मुश्किल हो जाता है बाद में। All right, there you're watching the Pavilion on A Sports and Sports and the Airwise app. इस मौके पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फे के बाद मजीद बातचीत। Congratulations Pakistan, we are through to the finals and we are going to a break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आनम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. News out of Sydney is Pakistan have won their semi-final against New Zealand and proceed to the finals. And that's the game we're talking about. I've got Shoaib Malik, Misbah Haq, Waqar, Younis, Wasim, Akram with me in the Pavilion. Waqar, let's talk about that Kane Williamson inning. बड़ी अचानक उनकी जो 2 मेन ओपनर्स जब न्यूट्रलाइज हुए, केन विलियमसन ने आके बड़ा एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया आज। और अगेन इट वाज एन अंडर 100% strike rate, but he just applied himself and steadied the ship for New Zealand. Look, जिस तरह की पिच थी excuse me, they didn't have choice. I mean मुश्किल पिच थी उस टाइम बैटिंग करनी, और स्पेशली जब आप ऊपर से ही आपका जो जिस पे ज़्यादा बैंक कर रहे हो जिस बैट्समैन पर फिन पर कि अगर वो जल्दी आउट हो जाए, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, he didn't learn from the mistakes he made. एंड अगर जब वो सामने आउट हो जाए एंड सडनली आपको अंदर आना पड़े तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एज अ कैप्टन ऑल्सो। एंड देन फिर थोड़ा सा उन्होंने शिप को थोड़ा सा सेटल ज़रूर किया तो अच्छा खेले, लेकिन इस तरह की पिच पे रन अ बॉल वाज नेवर इनफ। इट वाज अ स्लो पिच, येस इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट आई थॉट कि पिछले मैच में जिस तरीके से
विलियमसन खेला थे, आई थॉट ही इज़ गॉट हिज फॉर्म बैक, ही इज़ गोना बी डिफ़िकल्ट, ही इज़ गोना बी हार्ड टू बॉल एट, बट यू नो पाकिस्तानी बॉलर्स रियली स्टक टू द टास्क और बड़े आला बॉलिंग की, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की और उसको किसी भी तरीके से निकलने नहीं दी। यहाँ पे नवाज़ को रन आउट कर सकते थे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, और अगर बॉल रिलीज़ कर देते तो विलियमसन तो क्रीज में आए ही नहीं थे, तो थिंग्स वुड हैव बीन मोर डिफिकल्ट फॉर देम। बट ये आई मीन स्क्रैची इनिंग्स बट नॉट इनफ। आई मीन दे प्रोबेबली थॉट इन देयर माइंड के enough runs or maybe 5-10 runs short, but yeah, पाकिस्तानी बैट्समैन जिस तरीके से खेले, बाबर, रिजवान, ऊपर से जिस तरीके से पॉजिटिव क्रिकेट खेली गई, you know, Williamson known to be a very very good captain also, had no answers to them. He had no answers today. Glenn Phillips हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, you know, especially New Zealand fans की, and he's been a dynamite of a player throughout this tournament, with that one big century. मगर आज you know he could not negotiate the spin, the slowness of the pitch. ये हमारी उससे उम्मीदें बिल्कुल वाबस्ता नहीं थी, आपकी होगी, but yeah. I thought he's going to play good innings. I mean, I was yeah, he's exciting player, no doubt. But जो उसने शॉट मारी नवाज को, और नवाज ने एक रन आउट भी मिस किया, अगर आपने नोट किया होगा। पीपल विल से हम नेगेटिव बातें करते हैं, बट ये गलती है जो बतानी भी तो हैं। वो रन आउट अगर वो उसको मार देता थ्रो, विलियमसन था उस वक्त, तो वो उस वक्त आउट होता वो। सो अब ये जिसे बात करते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट्स स्ट्रीट स्मार्टनेस। कि भी एक रन होगा बट चांस है विकेट लेने का। खैर उसके बाद उसने कैच पकड़ा और उसको बिल्कुल फ्लैटेड डिलीवरी थी और विकेट स्लोनेस, जैसे आपने कहा, ये विकेट उसकी लैकिंग की नहीं थी। जैसे पिच रिपोर्ट पे शॉन पॉलक ने कहा था, दिस विकेट, ये जो विकेट है ये पाकिस्तानी के लिए ज़्यादा सूटेबल है देन दी न्यूजीलैंडर्स। और इंटरेस्टिंग मैचअप्स भी हैं। ये नवाज शायद को तीसरी की चौथी दफा आउट कर रहा है अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। आउट ऑफ लास्ट 5 इनिंग्स 4 दफा आउट हो चुका है फिलिप्स। तो आई थिंक वो नेचुरली वो जो एक रन आउट हुआ है लास्ट बॉल पे पावर प्ले किया, ये था जब हम लोग मैचअप्स की बात करते हैं, ये अगेंस्ट द स्पिन खेले, जब हम लोग मैचअप्स की बात करते हैं, आई गेस मैचअप्स के साथ साथ हमें कंडीशंस को भी थोड़ा सा अपने उसमें रखना चाहिए दिमाग में कि अगर बॉल टर्न हो रहा है या स्लो है। बेशक अगर किसी बैट्समैन का एवरेज या स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है अगेंस्ट स्पिन, बट जब अगर स्लो पिच है, स्पिन हो रहा है, तो उसके लिए भी टफ हो सकता है, एंड वी हैव सीन दैट टुडे। या वी हैव। अच्छा वकार, डू यू थिंक कि आज हमने पावर प्ले में फिर एक दफ़ा स्पिनर्स को हमने नहीं डिप्लॉय किया, एंड पाकिस्तान डिसाइडेड टू जस्ट गो विद इट्स पेस? न्यूजीलैंड ने भी नहीं किया पहले, न्यूजीलैंड ने भी नहीं किया। सो दैट वाज बिजार। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट वाज गोइंग ऑन, बिकॉज़ एक्चुअली वी वर सेइंग कि यू नो जो मैचअप्स हैं, जिस तरह कॉनवे हैं या जिस तरह फिन खेल रहे हैं, तो उनको अगर आप स्पिनर से अटैक करें, शोएब वाज एडवोकेटिंग दैट अ लॉट, सो वी डिडंट डू दैट, बट देन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी saw on the other side as well, क्योंकि Santner has bowled in the power play in this World Cup, and but we didn't see that. Why? What do you think was going on? I think पाकिस्तान का ये था कि अर्ली विकेट मिल गई थी, तो इतना शायद बाबर ने ऐसा फील नहीं किया कि स्पिनर को लाया जा सकता था। मे बी इफ्तिखार को शायद, क्योंकि जब कॉनवे था अभी क्रीज पर, तो उस टाइम उसको लाया जा सकता था, बट देन आई मीन ही वाज कंफर्टेबल विद द पेसर्स and he comes with a set frame of mind. He's a captain, he understands his player. That's fair enough. I mean sometimes लगता है हमें बाहर बैठ के कि ये ऐसा है, but today everything was spot on. उन्होंने भी नहीं किया, वो भी they were searching for wickets, क्योंकि वो लोग तो न्यूजीलैंड तो जीत ही नहीं सकती थी अगर वो विकेट्स अर्ली ना निकलती, तो अगर निकलती तभी पाकिस्तान को इशू कुछ हो सकते थे, but that partnership just took the game away from them. Truly, you're right about that. Darren Mitchell was also very, very special today. That half century by him actually is the reason why New Zealand got to that 150 total, Shoaib. बड़े destructive player हैं जब ये, और मुश्किल हालात में भी he is always scoring runs and always looking for boundaries. Even if we look at him batting in the last World T20, he was opening for New Zealand, और ये बहुत close था, हो सकता था कैच। उनको मिडिल ऑर्डर में इसलिए लाया गया है कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इसीलिए उनको लाया गया कंडीशंस को देख के। सो आई गेस प्रोएक्टिव जो उनका थिंक टैंक है, और ये जो उन्होंने बहुत अच्छा शॉट मारा सामने, ये ओवर एक्स्ट्रा कवर मारा, हो सकता था कैच, तो उन्होंने देखा कि हमें ज़रूरत कहाँ है इसकी ज़्यादा, क्योंकि फिन एलन को हम ऊपर लेके आए हैं एज एन ओपनर, तो अब हमें एक मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए, तो वो इनको बीच में लेके आए। और आई गेस उनकी इनिंग्स ऐसी थी, 35 बॉल्स पे 53 रन्स,
जो कि 152 पे उनको लेके गए, बट दे वर ओनली टारगेटिंग समहाउ गेट टू 150। आज 150 वाला सीन नहीं था। आई हैव वन क्वेश्चन। हम साउथ अफ्रीकन्स को यूजुअली कहते हैं चोकर्स, जो उनकी जनरली जो हारे भी अभी, बट आर न्यूजीलैंड आर द रियल चोकर्स बिकॉज they have played 12 semi-final in all World Cups and lost 9 of them. Wow. Nobody knew that. वो आज मिसबा ने ग्रीन रूम में बड़ी अच्छी बात की थी। अब केन विलियमसन का इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा था तू कितने सेमीफाइनल हारेगा केन विलियमसन को देख के टीवी पे। और मज़े की बात ये है कि मतलब न्यूजीलैंड बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नज़र आती है बिफोर द सेमीफाइनल्स, बट इनटू द सेमीफाइनल्स वो जिस तरीके से क्लिनिकल एक परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, स्पेशली समहाउ बोल्ट एंड साउदी उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। और बैटिंग में भी मैंने देखा है कि वो कुछ जल्दी, जैसे 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल था, वो एक आधी अर्ली विकेट जब गिरती है उनकी तो बहुत जल्दी शटर डाउन करते हैं और रिवाइज करके टारगेट को बहुत जल्दी नीचे ले आते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि एक विकेट जैसे फिन एलन आउट हुए हैं उसके बाद पुश नहीं किया बिल्कुल भी कहीं पे भी, अभी एक आउट था और समहाउ दे वर लुकिंग टू स्कोर 150, जो कि मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा उनसे उस तरह फिनिश भी नहीं हुआ। मिचेल की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, एंड पे भी वो जिमी नीशम 133 स्ट्राइक रेट, दैट इज़ नॉट बेसिकली व्हाट यू वांट फ्रॉम द नंबर 6। आप नंबर 6 पे अगर 12 बॉलें खेलते हैं तो समहाउ आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि स्ट्राइक रेट 170-80 का होता है। वहीं 10-15 रन का जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा एक फ़र्क था। आई थिंक मिसबा उसको बॉलिंग भी उस टाइम पे अगर देखें ना, बॉलिंग बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही थी, बहुत अच्छी बॉलिंग, स्पेशली यंग नसीम शाह। आई मीन दूसरे तो मिच्योर हैं, फिर भी मैं कहूँगा हारिस और शाहीन। नसीम ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आई मीन उसने जो अपने स्लोअर वन जो मिक्स किए, आइडियल पिच थी उसके लिए कि वो अपने बैक ऑफ द हैंड भी करता। और उसने स्पेशली इसको नीशम को ये तो अर्ली ऑन बॉलिंग की ना उसने, बॉल्ड रियली वेल नाइस एंड स्ट्रेट, रूम नहीं दे रहा था कि वो बैट्समैन कोई अपने बाजू खोल सके। ऑलमोस्ट गॉट अ विकेट देयर आल्सो। और पाकिस्तान ने आज विकी सिर्फ 6 स्लो बॉल्स किए हैं पूरे, उसमें 5 उसमें से नसीम शाह किए। ये उसने जो आखिरी ओवर भी किया है, ही वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। ऑल्दो आपको उसको फिर वही बात आती है कि आप जब नंबर्स देखेंगे तो आप कहेंगे कि थोड़े से शायद उसको रन ज़्यादा हुए हैं, लेकिन देन अगेन यू हैव टू सी दैट कि वेयर ही बोल्ड, व्हाट स्टेज डिड ही कम टू। आई थिंक ये बड़ा एक मैं कहूँगा कि अच्छी गेम अवेयरनेस की बात है कि आपको पता है कि साइड बाउंड्रीज छोटी हैं, बिल्कुल स्लोअर वन करेंगे तो वो साइड बाउंड्रीज को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने फुल किया है, रिवर्स भी हो रहा था और उनको न्यूजीलैंडर्स को मजबूर किया कि सामने बड़ी बाउंड्री पे मारें। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इस चीज़ को समझ के बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। प्रेडिक्टेबल नहीं हुए आज, प्रेडिक्टेबल नहीं। Another record for Shaheen. Yeah. It's the 7th time he took a wicket in first over of the innings. Yeah. That's incredible. The most by any Pakistani fast bowlers. That's incredible. That's why it's so important इस फॉर्मेट में भी कि वो पहले ओवर में आपको एक आधी विकेट दिला के गेम का पांसा पलट देता है। या शाहीन करता था या आगा साहब करते थे, दो ही बंदे बनते। और जो पावर प्ले की भी हम बात कर रहे थे सुबह, डीन जोन्स की बात कर रहे थे। आई मीन पहले 6 ओवर्स में हमने 38 रन और 2 विकेटें, और पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर्स में 55 रन फॉर नो लॉस। सो उसके बाद वो पूरी गेम पाकिस्तान के हाथ में रही है, वो न्यूजीलैंड के हाथ में ऐसे लगता था कि कम बैक कर रहे हैं, बट वो कहीं पे भी डोमिनेट नहीं कर सकते। What could have been the good total on this pitch, Shoaib and Misbah? You think? I think 170 मिनिमम लगता है। 170 उनका 6 ओवरों में 10 ओवरों में 59 था, कुछ 2 विकेट। आज जैसी उन लोगों ने बॉलिंग की है ना, स्पेशली द स्पिनर्स, मुझे लगता है अगर 170 भी होता तो दे आर ओपनर स्टार्टेड द इनिंग्स। मैं नोट कर रहा था सोदी तो था, वो बजाय के पूरा ऐसे रिप करने के सिर्फ आके ऐसे बॉल फेंक रहा था, ना कोई गुगली कर रहा था, ना उसकी बॉल में कोई जिप नजर आ रही थी। अगर गुड फॉर पाकिस्तान। अगर हम देखें तो कुछ उसके बहुत अच्छे वाले जो उसने बॉल गिरे उसके लाइन पे गिरे, लेकिन उसको भी बैक फुट पे जाके मैनेज हो गया और स्पिन के अगेंस्ट हुआ। तो इसका मतलब है कि आप जो है ना वो फोर्स नहीं लगा रहे गेंद पे, क्योंकि वो फोर्स लगनी जरूरी थी। ये 1-2 बॉल हुए, ये देखें, मतलब ये कोई इतने पीछे नहीं थे बॉल, लेकिन फिर भी समहाउ वो मैनेज हो रहे थे। पिच स्लो थी, मे बी शोएब इस वजह से। जी बिल्कुल स्लो पिच की वजह से जो है ये एक बॉल था वाहिद जो अच्छी जगह पे गिरा।
बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसा बॉल नहीं था कि जो आपको डिसीव कर सकता स्पिन के हारिस साथ। ने आके और थल्ली डाल दी सबको। यू नो वो ऐसा बैट्समैन है कि बॉलर को समझ नहीं आती करना कि ये भी फुल भी निकल के भी। थोड़ा सा प्रेशर आया है चेजिंग में, तब बाउंड्री लगी है, तब वो टीम गिरती गई, रिलीफ होता रहे। एंड सॉरी, दूसरा जो डिफरेंस होता है जाहिर है कि टिम साउदी और बोल्ट जब वो विकेट लेते हैं ऊपर से 2 एक आउट कर देते हैं, देन ये स्पिनर्स और थ्रेटनिंग हो जाते हैं। और जब आपकी पार्टनरशिप लगी हो 55 पे कोई आउट ना हो और आप आएँ बॉल करने के लिए और आपको पता भी हो कि सामने 2 अच्छे स्पिन को खेलने वाले हैं, then it becomes very difficult for you. Yes, it does. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. You're watching A Sports and Sports and the Airwise app. It is the ICC Men's T20 World Cup coverage, and it was the first semi-final. Pakistan has won. We go to the finals, and tomorrow is another big game. When we come back, there's more to talk about this game. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप एंड द बिग न्यूज़ आउट ऑफ सिडनी इज दैट पाकिस्तान हैव वन देयर सेमीफाइनल एंड गेस व्हाट, बारिश शुरू हो गई है सिडनी में। जी हाँ, मैच खत्म होने के फौरन बाद बारिश का बाकायदगी से आगाज हो गया था। और तरबूज खा लिए, कुदरत का निजाम। तरबूज मंगा लिए, तरबूज मंगाइए, पकोड़े ना बनवाइए। पकोड़े देखो, पकोड़े या समोसे, ठीक है, सीधी चाय आ गई है। जलेबी किधर है आपने मंगवाई? जलेबी आज वकार में ने ड्यूटी ली थी जलेबी की और देखे नहीं आई। वकार भाई मामला सारा सिस्टम आपका। वन जॉब यार प्लीज, वन जॉब यू हैड, वन जॉब। आई डिड, यू अनाउंस इट कि मैंने जलेबियां ऑर्डर की हैं। मेरी नहीं सुनी जाती पता क्या है, जलेबी मच्छर वाली नहीं। शुक्र है जो चाय बगैर मांगे मिल गई है। हाँ, ये बात तो अच्छी बात है। आपने सुना नहीं है, मैं तो कब से श्योर चाय शुरू में मांग ली थी, लेकिन वो डांस किया ना, पसीना आ गया था, इसलिए लेट मांगी है। तो सीधी तो पूरा मेरा मतलब है खुशी करी करी आती है। चले जी, बाकी में खुशी आती है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमारे मुल्क को और हमें, हमारी कौम को वैसे हमें खुशियों का मौका चाहिए। There's just too much negativity and toxicity around us all the time. It's always good to have a positive thing and to celebrate that together as a nation, as a country, without being critical and without, holding back. So let's just enjoy the moment. It is special for us today. Now let's get back to the game. Babar Azam, wow, we are so happy to see him back in action. Now the critics, the best way to shut your critics up is to let your bat do the talking. And that's exactly what Babar Azam did today. His batting today was of the Babar Azam that we were missing throughout this World Cup. What an innings that he played, Waqar. ये मैंने तो सुबह कहा था कि आप लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जी बैटिंग ऑर्डर अभी भी चेंज कर लो। मैं तो क्रंच टाइम पे मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए था। यू नीड इट। क्या कह रहे? ला दे मेरा नाम। जो लावांगा नहीं और ना लावा जे भी ना लावा, एक दिन नाल कुछ नहीं होता, पूरा साल तो जेडे गैर ने वो बड़े जाने पॉइंट्स। ऑलराइट, वैसे भी वही चीज डिस्कशन में आती है जो आज हो। मैं तो तंग आ गया क्या कर जो दो आज हुआ वही कहना है ना। मतलब नहीं कि तुसी मन जाओ। Okay, guys, back to Babar. I mean, Babar Azam. Excellent knock. I mean, he was a little nervous to begin with. We all saw that. थोड़ा सा scratchy शुरू हुआ, but once he got that stroke on, and then that's the old Babar. You know, when he gets on top of the ball, and this is something new I'm seeing. You know, playing on the onside, just flicking the ball away, and just being aggressive a bit more. And I think that will really do wonders to him going forward for the World Cup. I think a World Cup final. I think if he carries on playing like this, what we saw today, I'm sure he'll get a big one again. Misbah, what was different about Babar's game today? Abhi ye jis tarah Waqar ne point out kiya ki something new, hitting on the onside, the pickup shots, very uncharacteristic of Babar. He likes to play the classic drives and so forth. देखिए, मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी है वो डिफरेंट माइंडसेट था। एक प्रेशर था टीम की परफॉर्मेंस का, अपनी परफॉर्मेंस का तो था ही, टीम की परफॉर्मेंस का कि यार हम लोग जिम्बाब्वे से हार गए हैं और हम बाहर होने जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको कैचअप करता है वो प्रेशर एज अ कैप्टन, और उस वजह से उसकी अपनी बैटिंग और वो बड़ी एक अजीब सी मेंटल सिचुएशन में था। व्हेन फ्रॉम दैट सिचुएशन यू आर इन द सेमीफाइनल, सडनली आपको एक रोशनी की किरण नज़र आती है और आपको लगता है कि यार कुछ भी सही नहीं होते भी हम अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए, हेयर वी गॉट अ चांस।
और वो माइंडसेट वो बिल्कुल आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। आज मुझे लगा है कि उसका डिफरेंट माइंडसेट जो आते ही वो इवन इस प्रेशर में भी जिस तरीके से वो खेल रहा था, और जैसे वकार भाई ने बात की, वो जो पहला शॉट उसने वो ये वाला मारा है एंड देन स्ट्रेट ड्राइव, तो मेरे ख्याल में एक ही आवाज़ आई है उस टाइम हम दोनों की कि किंग इज़ बैक। ये शॉट जब आपकी लग जाती है द बैट्समैन सामने वाली, वो ऐसा गुड फील फैक्टर होता है। सुबह हम कह रहे थे ना कि 2 अच्छे मिडल हो जाए तो एवरीथिंग जो पीछे चल रहे थे सब ख़त्म हो जाता है, आप फील करते हैं। एंड देन ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं, जो आइडियल सिनेरियो था, जो आप रन चेज करने जा रहे थे, व्हेन यू आर सीइंग दैट कि यार इट्स द वर्ल्ड कप फाइनल, आगे हम जा रहे हैं इसके बाद, एज अ बैट्समैन लाइक बाबर एंड रिजवान, वो जो फील आई है उनको कि ये चांस हमने हाथ से नहीं जा रहे थे। क्योंकि वो क्लास प्लेयर है, और अगर आप बहुत सारा ये वर्ल्ड कप देखें तो ये अराउंड 150-160 रन्स के ही वो चल रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर हम अपने बैटिंग लाइनअप को देखें तो वो सिंस इज अ क्लास प्लेयर, तो उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। तो वो जो काम ओपनर कर रहे थे वो एज अ फिनिशर भी कर सकते हैं अगर एक आधा नंबर नीचे आए तो। कंसिडरिंग द कंडीशंस, तो ये रिक्वायरमेंट उस वक्त बन रही थी। लेकिन एनीथिंग, ये पहला शॉट जब लगा है उसके बाद हर चीज़ जो है वो, और एक दफ़ा फिर बाबर रिजवान की 100 की पार्टनरशिप लगी है, another 100 stand opening stand for Pakistan, and of course clearly 2 things that we could see here, Waqar. Rizwan was attacking balls outside the off stump and getting them through for boundaries on the offside, and Babar started playing these onside unconventional strokes. I think they have worked on their game, and they've spoken about it. You can clearly see the difference between the innings which they've been playing and what they play today. वाज़े फ़र्क नज़र आया। और सबसे जो अच्छी बात और अभी अर्ली ऑन मिसबा ने कही है कि वंस यू स्टार्ट हिटिंग, और मलिक भी कह रहा था, मलिक तो काफ़ी दिन से ये शोर मचा कि जहाँ का बॉल है वहाँ खेलो। और जब उसने रिजवान ने स्पेशली जब 1-2 शॉट ऑफ साइड पे जब चौके मिले हैं तो बैट्समैन के पास चॉइस ख़त्म कर दी उसने। पहले उनका ये होता था कि यहाँ बॉल करो, ये कुछ नहीं कहता आपको, देन यू ट्राई टू उसको चॉप करेगा, सिंगल पे ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब आपने 1-2 चौके थ्रू द कवर पॉइंट के अंदर से जब चौके मारे हैं, देन फिर बॉलर के पास चॉइस नहीं रहती, उसने फिर सीधा आना है। जब वो सीधा आया तो देन बिकम्स हिज ओल्ड गेम, देन ही ब्रॉट हिज ओल्ड गेम बैक। So I think that must have been discussed and played that bill. A new world record by both of them. Yes. They are the first pair to have 3 century stands in T20 World Cups. It was twice last year, Namibia and I think India के खिलाफ था। अब एक ये किया है, and overall Babar and Rizwan have the 9 century stands, the most by any opening pair in the history of T20. सही नहीं है, चेंज करें Opener. Misbah, why would Actually. I know. I think what happens is कि एक परफॉर्मेंस है आपकी, अच्छी परफॉर्मेंस आ गई है, ओपनर्स की हमारी फॉर्म वापस आ गई है, तो यकीनी तौर पे दिस इज़ व्हाट वी आई थिंक एवरीबडी वांटेड, दे वांटेड देम टू शाइन, एंड बिकॉज प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, हेंस केम द सजेशन कि मे बी एक स्विच होना चाहिए कि हम मोहम्मद हारिस को ऊपर ले आए। दैट वाज परहैप्स द आइडिया। करूंगा कि नहीं, ये तो 9वें सेंचुरी, मैं यही कह रहा हूँ कि एक इशू था, बिल्कुल। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना था कि अभी ये क्रंच मोमेंट पे अभी मत करो, क्योंकि ही इज ऑलरेडी डाउन। बाबर रिजवान दोनों इतने डाउन है कि अगर उनको मूव करोगे तो दैट विल जस्ट दैट सिंकिंग फीलिंग आती है आपको। सो दैट इज द रीजन आई फेल्ट कि इनको अभी नहीं चेंज करना चाहिए। बट हम लोग भी ये पिछले 10-15 दिन से लगे हुए हैं कि हारिस आपको नज़र आया है कि जो ऊपर से खेलता है उसको मे बी अपॉर्चुनिटी दो, बिकॉज दे वर नॉट स्कोरिंग रन्स एंड वी वर लिटिल वरीड फॉर देम। Yes, we were worried for Pakistan team. I think that was the most important thing. But Misbah, Wasim, one very interesting thing. आज 2 ही छक्के जो हैं वो लगे हैं। एक जो था वो मिचेल की तरफ से आया था, दूसरा जो है वो हारिस की तरफ से आया था। The only 2 people who could clear the boundary today, and that to the long boundaries basically. I think this is a very good way our top order is turning out. Wasim, would you agree? Where if Babar and Rizwan score at the strike rate that they scored in today, gave a big launch pad, and then to have somebody like Khurram come in, and he showed that he played according to the situation. Misbah, आज उन्होंने बड़ी एप्लीकेशन के साथ जो है वो बैटिंग की है। आई थिंक बिग प्लस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हम शायद यही थोड़ा सा वरीड थे कि हारिस में भी अगर बाद में आएगा पावर प्ले के तो वो उस सिचुएशन के मुताबिक जब फील्ड खुली होगी तो खेल पाएगा कि नहीं। बट द वे ही बैटेड टुडे, उसने गैप्स को हिट किया, उसने बॉल पिक किए हैं,
उसने रनिंग बिटवीन द विकेट देखी है, चौके भी देखे हैं, और फिर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब उसको समझ आई कि अब बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है तो उसने वो छक्का लगा के वो मैच को बिल्कुल करीब कर दिया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब पाकिस्तान को मेरे ख्याल में कम से कम गोइंग टू द फाइनल और आगे उसको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके पास वो सेंसिबल बैटिंग भी है। जिस तरह ये मिड ऑफ ऊपर था और उन्होंने बजाय ऑन साइड पे खेलने के मिड ऑफ के ऊपर से मारी, और ये जैसे उन्होंने फाइन लेग थोड़ी बाहर देखी है उधर खेले हैं, फिर ये बड़ा ज़बरदस्त गैप शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, जो हम नॉर्मली बॉलर की माइंड को रीड करते हैं कि भाई फ्रंट फुट पे बॉल आया है, इससे कवर में चौका खाया, अब ये लेंथ बॉल या पीछे करेगा, तो वो पहले उधर को गया, बॉडी में लिया और उसको वहाँ पे उसने प्लेस किया। तो आई थिंक 3 मैचों के बाद अगर किसी का माइंड इस तरह चल रहा है तो इट्स गुड साइन फॉर पाकिस्तान, गुड साइन फॉर हारिस आल्सो। इट इज़ डेफिनेटली। सुबह शोएब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आज फिटनेस और फील्डिंग कितना मैटर करेगी, एंड दो पाकिस्तान completely looked very clinical in both bowling and in batting, surprisingly today it was the New Zealanders that looked not very good with their fielding. They dropped 2 catches, but Pakistani fielding के बारे में आपका क्या ख्याल है? I think we didn't drop any catches today. पाकिस्तानी फील्डिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। काफ़ी सारी जो है वो 2 रन्स भी जो है मिले। ये देखिए शादाब की डाइव, इवन दो मुझे ये लगता है कि शादाब फुली फिट नहीं है, लेकिन फिर भी द अमाउंट ऑफ एफर्ट ही पुट, और ये जो रन आउट था ये बहुत क्रूशल टाइम भी हुआ था। मुझे लगता है ये रन आउट जो था ये टारगेट नीचे लेके आया जो हम लोगों ने चेस करना था। हारिस राउफ की बहुत अच्छी फील्डिंग, ये रिजवान देखे हर बंदा जो था ऑन द टोस था, तो ये बहुत अच्छा साइन है। मेरे लिए जो आज थोड़ा सा वो था वो ये था कि विलियमसन की कैप्टनसी जो है वो हम बहुत प्रेज़ करते हैं, लेकिन आज वो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे पास 2 ऐसी पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। सोडी जब बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने ऑन साइड पे 5 फील्डर रखे हुए थे, पॉइंट नहीं था, और पॉइंट पे बहुत सारे रन्स गए हैं। और जब आपको रन अप बॉल चाहिए या आप 7 का एवरेज भी जो है आप चेज कर रहे हैं तो वो बहुत इजी है, और स्पेशली बैट्समैन लाइक बाबर और रिजवान उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो प्लेसमेंट से खेलते हैं, गैप्स में खेलते हैं। तो मुझे आज कैप्टनसी भी जो थोड़ी है वो नहीं समझ आई विलियमसन की। फिर हारिस जब खेल रहा था और वो लैप शॉट बहुत अच्छी खेलता है, फाइन लेग भी नहीं था, उन्होंने बिल्कुल बाहर करके रखा हुआ था। तो ये मुझे आज कैप्टनसी जो है वो थोड़ी समझ नहीं आई उनकी विलियमसन की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक थोड़ा सा जो था हमारे बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा साइन हुआ, साइन मिला। It was a good advantage. All right, folks, you're watching the Pavilion on A Sports and Sports in the AirWise app. हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। Welcome back to the Pavilion, and the news out of Sydney is Pakistan have won their semi-final and move into the finals of the ICC Men's T20 World Cup. और आप हमें देख रहे हैं A Sports and Sports and the AirWise app. And we were talking about how things have turned up, especially पाकिस्तान की हम फील्डिंग के हवाले से भी बात कर रहे थे। आज फील्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही, हर डिपार्टमेंट के अंदर आज पाकिस्तान ने बड़ी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। एक सवाल बनता है वसीम के, वकार ने एक दफ़ा पहले भी बोला कि स्लो स्टार्ट लेता है पाकिस्तान बड़े टूर्नामेंट के अंदर, या थोड़ा वो होता है। हाउ कैन वी इंश्योर कि ये जो परफॉर्मेंस थी या साउथ अफ्रीका वाली जो परफॉर्मेंस थी, ये कंसिस्टेंसी हमारी बरकरार रहे, ये कंसिस्टेंसी रही, ये फ्लूक्स नहीं होने चाहिए, ये कंसिस्टेंट चीज़ होनी चाहिए हमारे। दिस इज नॉट अ फ्लूक, आई मीन दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सारे इकट्ठे हैं अभी। 7 एशिया कप के बाद 7 इन्होंने T20 यहाँ खेले, उसके बाद न्यूजीलैंड गए, फिर वर्ल्ड कप के वहाँ मैच खेले, फिर ये खेले। सो उसमें दैट ऑल्सो शोज़ कि दीज बॉयज़ आर क्वाइट फिट इन जनरली। देखा इंजरी हमें कोई स्केयर नहीं हुआ, सो दैट्स अ गुड साइन। अब कंसिस्टेंसी तो आई सपोज आई कांट से फ्रॉम हेयर, बिकॉज हम भी जब खेलते थे हम भी काइंड ऑफ इनकन्सिस्टेंट ही थे। सो जब पाकिस्तानी पूछते हैं ना मेरे से कि वाई पाकिस्तान टीम इज़ नॉट कंसिस्टेंट, तो आई हैव एन आंसर। मैं उन्हें कहता हूँ कि पाकिस्तान में कंसिस्टेंट है क्या,
हम भी इसी जगह के प्रोडक्ट के हैं ना, That's ये very पार्ट good ऑफ दिस point. प्रोडक्ट, यहीं से निकले हैं ना हम. Very good हम point. भी पाकिस्तानी बच्चे हैं ना. So Very good on and point. off होता रहता है, but coming back to, I'm not taking a thunder away. Yeah. We are in the finals, man. That's a huge That's deal. a huge deal. World Cup finals. World Cup again. final. That is what matters. And I hope we take this momentum into the finals as well. This is the Waqar. 5th time we are reaching the finals, Yeah. ICC World Cup finals. वैसे भी हमें कंसिस्टेंसी पसंद नहीं है, क्यों? इसलिए तो हम कह रहे थे ओपनर बदलो. देखो, जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो लोग कहेंगे. सिंपल है. it's a This is simple thing. नहीं, वो Yeah. जब परफॉर्म कर रहे थे फिर भी हमें था कि नहीं. Since we are discussing this, तो आपको लगता है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है? क्या चीज? चलो, हारिस छोड़े, आगे बैटिंग एट नंबर 3 या हमारे अगर ओपनर? हम यहाँ से निकलेंगे तो बाद लोग डंडे लेके खड़े होंगे. So let's don't go on this road. आज छुट्टी है, ऐसे वजह तुम्हें पूछी है. वो लोग पक्का है चलाओगे? कि छुट्टी है. No, I think we can have this conversation after the World Cup or after the final now. When they अच्छा, win the cup, इंतजार कर रहे inshallah. हैं. Yeah. इंतजार कर रहे हैं जिस तरह हम करते हैं कि नहीं, कोई इंतजार एक की आधी बात नहीं है. आई थिंक परफॉर्मेंस. मिसबा जो चीजें फिक्स करने वाली हैं, अगर- जिस तरह हमने सिस्टम के अंदर बहुत सारी ग्लेरिंग गैप्स को देखा है, जो पीछे से सिस्टम हमारा पाकिस्तान का है, उसको किस तरह हमने करना है. देखिए, विन के Talking बाद about system, sorry to cut you. How big a day was today? Yeah. Generally for a cricket lover, under 19 players, generally कितना बड़ा दिन है आज? huge. Massive day, Yeah. public holiday. Yeah. आज पीसीबी के अंडर 19 के ट्रायल थे. टुडे, ओके, वो डेट पहले अनाउंस होगी हुई थी. ठीक है. बट आगे कर दो एक दिन यार. वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल बच्चों ने फाइनल देखना है. नहीं तो सो सिस्टम की बात कर रहा है, उसके लिए कॉमन ये सेंस मैं कह रहा हूँ ना, चाहिए. जो गैप्स हैं, जिन चीज़ों पे हमने अभी तक गुफ्तगू की है वकार, आई थिंक दोज थिंग्स विल स्टिल हैव टू बी एड्रेस. क्योंकि मुझे एक जो डर तो नहीं है, वरी और एक कंसर्न होगा एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, इज दैट के इंशाल्लाह वी विन द वर्ल्ड कप, ओके, and if the World Cup comes home, we will forget all the problems that are there that still need to be addressed, all the issues that are still left undone. We need to go and still fix those things. I think we need But to. that's what it is. That's Yeah. what we are. I mean, that's everything will go under the carpet, sure. Yeah. But let's don't talk about it right now. No, no need to It's talk a about happy that. Let's time. just और celebrate. फाइनल के बाद इंशाल्लाह जब फाइनल लेके आएंगे ना, अभी वसीम भाई ने कहा था डंडे पकड़ के बाहर खड़े होंगे, वो तो फिर गन लेके खिलौते उन्होंने बाहर. All right, let's go with the way forward. Waqar, what do you think is the way forward for New Zealand? उन्होंने अभी होमवर्क नहीं किया. ऑकलैंड, सिडनी टू Way ऑकलैंड. forward for who? For who? उसको नहीं पता. New Zealand. न्यूजीलैंड बोल. Way न्यूजीलैंड forward for our dance moves. EK 601. ई के उधर तो वो तो नहीं न्यूजीलैंड जाएगी. लोकल फ्लाइट उनको लगेगी ना. हमको डोमेस्टिक NZ. लगेगी. So not domestic but Yeah. short flight. ये फिर मैं नहीं But yeah, no. I mean they are a wonderful side. उनको ये कहीं ना कहीं बैठ के सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, because this is not the first time it happened to them. एक टैग उनके साथ भी लगता चला जा रहा है कि सेमीफाइनल, फाइनल, they're not really taking that last step which is the most important step. So उनको सोचना पड़ेगा. They will probably sit down and I mean still a very very fine side. They've got so much talent in that team. But unfortunately and fortunate for us that we are in the final, they have to go home. अच्छा मिसबा, ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान टीम का डेथ ओवर्स के अंदर क्यूमुलेटिव मीडियन एवरेज है, इसको किस तरह आप लोग कैलकुलेट करते हैं? I mean, you were the head coach as well. How do you calculate that? सिंपल है, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ ओवर्स बॉल्ड और रन्स जो आपके अगेंस्ट स्कोर हैं उसको डिवाइड करते हैं. अगर आपने कभी मैथ कभी छोटे होते हुए पढ़ा हो तो मेरे ख्याल में आपको पता होगा कि What are you ऐसे guys on about? मैं वही पूछ रहा हूँ. So exactly. ये शो शुरू हो गया हुआ है. हाँ. So cumulative median average इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं? मैं रन रेट की बात कर रहा हूँ जो वो बता रहे हैं मैं कि तो आप cumulative median एवरेज की बात पता नहीं तुसी की पूछ रहे हो. exactly, which is nothing to. वसीम भाई, इनमें ना थोड़ा सा गैप लेके आए. हाँ. साथ में आते हैं, साथ में हलवा पूड़ी, साथ में निहारी हैं और वो ग्रूमिंग भी. What? Okay, it's time to take a break. But break में जाने से पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर Ask the Pavilion का ये हैशटैग आपको नजर आ रहा होगा. There you go. There's the Ask the Pavilion hashtag. We're going to take your questions with the finest gentlemen of the cricket game. And so stay tuned. Keep watching the Pavilion, A Sports and Sports and the Airwise app. Ask the Pavilion. सवालात भेजिए, जवाबात ब्रेक के बाद.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. सिडनी में पहला सेमीफाइनल अपने ख़िताम को पहुंचा. पाकिस्तान ये मैच जीत कर फाइनल के लिए पहुंच गए. Isn't it amazing कि एक टाइम पे लोग कह रहे थे, oh, Pakistan is the first team out of the World Cup. Well, the news is Pakistan is the first team in the finals today. Ain't that a great surprise? With me in the pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar, Younis, and Wasim. पता है कि क्यों हुआ है? क्योंकि रात का टाइम हो गया ना. नहीं एक्साइटमेंट है. नहीं ये मसला नहीं है. सामने प्लेटें आई हैं ना, ध्यान सारा उधर चला गया. हेलो जी, थैंक यू सर. खतरा है कोई समोसा ना चुक लवे. अब उनका नाम आया तो एक दो स्टोरी सुना दे. एक दो नहीं सुनाई जा सकती. नजर इधर उधर है कि कोई समोसा एक उठा ना ले. हाँ, वो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि सब लोग. So samosas and jalebis have arrived in the studio finally. Waqar, thank you very much, क्योंकि ये आपके कहने पर ये जलेबियाँ जो है ना हमारे पास पहुँची हैं. मैं तो बड़ी देर से लगा हुआ था, मेरे कहने पे नहीं आई. ये आपने को पीछे से मुझे लगता है कोई मैसेज मैंने कोई मैसेज नहीं किया बॉस. ये बस आ गई हैं, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि जनाब द जलेबीज आर इन द हाउस. वसीम बिस्मिल्लाह करें. we go. I'm not having jalebi. Okay. All right. Thank you. खा चुके हैं. साथ चुके हैं सर. मुबारक नहीं, हो. आज उन्होंने नहीं खाई. फाइनल मुबारक. उन्होंने थोड़ा सा समोसा खाया, जलेबी नहीं खाई. फाइनल मुबारक हो. फाइनल मुबारक. Thank you. सबको मुबारक हो. सबको बहुत बहुत मुबारक. राइट जनाब, आज से पेविलियन का सिलसिला शुरू करते हैं. तो पहले बुर्की खा लेना. नहीं साथ में चलेगा. इमरान चीमा का सवाल आया है. As of now, there is 95% chance of rain in Melbourne on Sunday and Monday. It seems like if this prediction is true, then we may not have the final at all. Is it possible to shift the final on Tuesday? Asked the Pavilion by Imran Chima. Ji Wasim. I doubt it, Imran. They can shift it because everything has been sorted, planned about years ago, at least couple of years ago. ये date जो थी, ये timings थी. अब बारिश आ रही है. अब I don't know उसका law क्या. I'll find out during the break. Actual what happens if final में there's a rain? Is there a reserve day? There is a reserve day. There is a reserve day, Imran. अगर अगले दिन भी बारिश है, then what will happen? That's actually a very valid question. मजर से हमें पूछना पड़ेगा. हो सकता है छोटा मैच हो जाए, छोटा विंडो निकला है. For instance, 2 दिन चलो for argument's sake अगर 2 दिन मैच दोनों दिन नहीं होता, तो then what will happen? We need to find out that. We'll have to find that out. Yeah, Mazhar, if you're watching, please let us know what are the what happens next. ICC के उसमें क्या है. साद भट्ट का सवाल है. After this World Cup, do you guys think Fakhr Zaman will be in playing 11 while Shan and Haris are performing well? This is from Saad Bhatt. Misbah? I think depend करता है. Obviously, जब आपके कोई player perform कर रहे हैं, but आपके उस pool में तो हैं वो. You can always utilize him. बड़ा एक impact player है आपका. So let's see. I mean, it's totally up to the captain and the management कि कैसे वो सोचते हैं. But कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे players की. और वो आपका मैच विनर भी है जब वो कोई इनिंग खेलता है ऐसी, चाहे वो नंबर 3 पे हो या ऊपर हो. Let's see how it goes after the World Cup. All right. Wasim Lodi का सवाल आया है. Why Pakistan gets defensive in the middle overs and allow easy singles and doubles? It was 49 for the loss of 3 wickets in 8 overs and 87 for 3 in 12. Match was slipping away, but credit goes to our bowlers who brought us back. Ask the Pavilion. Wasim Lodi, Shoaib. बिगिनिंग में मुझे भी ऐसा फील हुआ जब 6 ओवर्स ख़त्म हुए हैं और मिड विकेट जो है वो बाउंड्री लाइन पे थी जब वसीम जूनियर बॉलिंग करने आए हैं. तो उस टाइम पे मुझे भी एक दफ़ा ऐसा लगा कि ये होना चाहिए. लेकिन आई गेस ये इट वाज अ गुड स्ट्रेटजी बाय बाबर आजम कि उन्होंने कहा कि हम 170 पे ना जाए, 150 तक रहे. तो आई गेस इसलिए मेरा ख्याल है वो उनकी सोच थी. I have a question. जी. क्वेश्चन है फ्रॉम शब्बीर तरीन. उनका क्वेश्चन है हु इज़ बेटर डेथ बॉलर, वसीम भाई एंड ऑल ऑफ अस ऑब्वियसली. नंबर 1 शाहीन शाह और वसीम जूनियर. सो फार मैं जवाब देता हूँ, बाकी भी दे सकेंगे वन बाय वन. शब्बीर, मेरे ख्याल में इस वक्त जो दोनों में से बेहतरीन यॉर्कर करता है और जो डेथ बॉलर मेरे ख्याल में करेगा वो वसीम है. बाकी मिसबा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं इस पर. आई थिंक यॉर्कर्स में वसीम जूनियर उसकी पेस है, बट शाहीन ऑब्वियसली गिव्स यू अ डिफरेंट एंगल. नसीम शाह और उसके दरमियान नसीम, आई थिंक बड़ा नसीम शाह को एडवांटेज ये है कि वो उसके जो स्लोअर वंस हैं वो रिसेप्टिव हैं. और आज भी आपने देखा इट्स नॉट दैट ईजी. और उसकी जो वेरिएशन ऑफ द लेंथ भी है वो बड़ी अच्छी करता है. इट्स अ टफ डिसीजन. मुझे लगता है मैं अगर देखूं तो मुझे लगता है कि नसीम शाह स्टिल
आई फील कि वो आपको विकेट, इवन डेथ ओवर्स में भी विकेट भी दिला सकता है और वो प्रेशर डालता है फिर अपोजिशन पर। राइट, वकार जी, वकार भाई बोलेंगे और तुसी खांदे रहो जी। मैं उनकी गल करा। देखिए हमारे ये जितने भी बॉलर हैं ये दे हैव ग्रोन अप ऑन अ स्लो पिचेस जहाँ पे यॉर्कर्स यू नो इज अ मस्ट। और मैं समझता हूँ कि दे ऑल गुड। नसीम शाह इज स्टिल सॉर्ट ऑफ लर्निंग। जो सबसे मुझे जो अच्छी बात लगी है कि अब वो जो उसने जो स्लोअर वन करना सीख लिए हैं, आई थिंक he will bowl much better. पिछले PSL में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग, he is improving every day. But when it comes to Yorker, of course, I think the biggest or the match between is Mohammad Wasim and Haris Rauf. And I think when Haris Rauf on song hota hai, when he gets it right, he is probably the most destructive bowler because of his pace. He can bowl 155, 156 at times. Naseem I know. I've just explained it. Naseem is a different bowler. Naseem is a very high arm bowler. I think he will be a lot more effective with the new ball. Right. अभी आने वाले दिनों में देखेंगे he will be a lot more effective with the new ball. But when it comes to reverse, I think Mohammad Wasim and probably Haris. वो बारिश वाला आंसर आ गया वसीम भाई के पास। या अगर वर्ल्ड कप फाइनल इज वॉश्ड आउट, द टीम्स विल बी, बोथ द टीम्स विल बी डिक्लेयर्ड जॉइंट चैंपियंस और विनर्स। Wow, बट देयर इज अ रिजर्व डे भी है। अगर दो नहीं होते फिर दोनों टीमें आपकी बन जाएंगी। ओके जनाब, तौकीर भट्ट का सवाल है, कांग्रेट्स टू पाकिस्तान फॉर मेकिंग इट टू द फाइनल्स। 2 क्वेश्चंस, one for Wasim and the other for Waqar। वसीम भाई आपसे उन्होंने पूछा है हाउ पाकिस्तान विल कीप देयर नर्व्स काम इन द फाइनल, and Waqar, how much pressure will India be in tomorrow's semi-final against England? What do you think about the English team? So these are the 2 questions for you first. How Pakistan will keep their nerves calm. How can they keep their nerves calm for the finals? don't have to do anything different, just exactly the way they played today, the way they were before, day before the game, relaxed, chilled. अगर practice off है, थोड़ी fielding करने जाना है, that's it. Don't do something out of the ordinary. That's all. Right. And Waqar, for you, how much pressure will India have tomorrow now against England? Semi-final knockout stage is always a pressure. Doesn't matter कौन सी टीम किसके साथ खेल रही हो. आज पाकिस्तान पे भी प्रेशर था, न्यूजीलैंड आज क्रम्बल कर गया अंडर प्रेशर. सो प्रेशर तो इंडिया पे होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो. बट आई फील अगर दोनों टीमों को देखा जाए और ग्राउंड जिस पे वो खेल रहे हैं, यहाँ मैं समझता हूँ कि इंडिया को थोड़ा सा एज होगा, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है डिस्ट्रक्टिव है, पिच थोड़ी वहाँ फ्लैट होती है, तो जो बैटिंग है, बैटिंग वाइज आई थिंक इंडिया इज लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन इंग्लैंड. बट देन इंग्लैंड अगर वुड पड़ गया उनको तो फिर देन इट कैन गो आइदर वे. आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम रेहान, जो कि बड़े क्रिकेट लवर भी हैं, वर्क्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. Best matchup versus Conway was Haris. Pakistan gave him 2 overs in power plays. Best matchup versus Finn Allen is a left-arm pacer. Shaheen got him out. Best matchup versus Phillip is left-arm spin early. Pakistan used Nawaz. How highly does the panel rate Pakistan's planning today? Shebi? I think great planning. और जो भी चीज़ करते रहे वो बिल्कुल उसी जगह पे जैसे वो चाहते थे वो होती रही है. और आई गेस प्लानिंग एक बहुत अच्छी है, मैचअप्स बहुत अच्छी चीज़ है और ये ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से आउट हुए हैं कुछ टाइम, तो वैसे ही बैट्समैन जो है ना, एज अ बैटर आप सोचते हैं यार इसने मुझे कुछ दफ़ा में आउट किया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना देख के खेलूँ. तो आई गेस मैचअप्स आर गुड और होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम, और आई गेस let's do the same in the finals as well, inshallah. We hope for the best. And ये आखिरी question है before we go into the break. This question comes from Sayyid Mujib. Question to all of you. वो कह रहे हैं कि why are your dance moves restricted on the chairs only? When inshallah Pakistan wins the final, I want to see you all on the floor. Please add this tweet to your show. क्या नाम बताया था भाई का? Sayyid Mujib. मुजीब साहब, नेक्स्ट टाइम मैं ग्रुप आ गया था बेचा जाऊंगा. If you really want. मैं तो चेयर पे नहीं था, मैं तो उठ गया था. नहीं तबाश भी. No, we will definitely. If Pakistan wins, we'll be on. prepared. Yeah, and with that it's time for another break here on the Pavilion. लेते हैं एक छोटा सा वक्फा. आप देखते रहिए A Sports, 10 Sports और हमारा पहला समोसा है. पहले जलेबी खा रहा था. ब्रेक के बाद फाइनल जीते तो क्या होगा?
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airways app our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. I have with me in the Pavilion Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar, Younis and Wasim Akram. आज द पवेलियन के आपके सवालात जो हैं उनका सिलसिला जो है वो जारी है और सवालात जो हैं आ रहे हैं और जितने हम उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम। इस वक्त जनाब ये सवाल आया है डॉक्टर समी का, कहते हैं वसीम भाई आपसे उन्होंने पूछा है व्हाई डोंट वी कंसिडर इफ्तिखार अहमद bowling at least 1 or 2 overs especially before final where we probably have to face England, and I think this question has come in 24 seconds ago but he's already bowled now, so I don't think there is any point in having this question, right? क्वेश्चन क्या था कि why didn't he bowl today? No, why don't we consider Iftikhar Ahmed bowling at least 1-2 overs, especially before final, where we probably have to face England and they have a couple of left-handers as well. If he bowled today 1-2 overs in the semi-finals, but वो उधर गया ना semi-finals. But अब बॉलर को बॉलिंग इसलिए थोड़ी ना कराते हैं कि यार वो फाइनल में ऑलरेडी फाइनल में पहुंच के बैठे हैं, सो उस वक्त सिचुएशन नहीं बनी, लेफ्ट आर्मर्स नहीं थे, कप्तान ने उसको बॉलिंग नहीं दी, मे बी दैट्स व्हाई। राइट, मुजीब जो हैं, मुजीब आर्कियान, ओके, सो मुजीब आर्कियान 332, आपका सवाल ये है कि would we still be having the conversation of changing Babar Azam's position if he was caught on 0? His catch was dropped when he was on a duck. Would we be having a different conversation about that? I don't think so. If he won, I don't think we would have any conversation like that. No. और ऊपर से भी in the morning we said we are fine with this opening pair. They've been scoring runs. ठीक है, on and off हुए हैं पिछले एशिया कप से वर्ल्ड कप तक. Now they're back in the groove. Okay. Okay, so there are just too many good questions coming up. Guys, you can also scan through these questions. I don't have to do the scanning and the reading at the same time. Why is it not out after the ball pitched outside leg straight away? Any scientific logic? Sayyid Ali Asghar का सवाल है. This is a good question. बहुत दफ़ा हम देखते हैं टेलीविजन के ऊपर वकार वसीम कि पिच बॉल जो है वो पिच हुआ होता है आउटसाइड द लाइन, लेकिन वो जा रहा होता है, इम्पैक्ट बिल्कुल करीब होता है विकेटों के, इट्स श्योर शॉट टू हिट द स्टंप्स. But why that it's pitched outside, then it's not given LBW? That's what the law says. If pitched outside the line, it's not out. If pitched outside off stump, leg stump, it's not out. Pitched outside off stump line, it's not out. That's what the law says. No, pitched outside the off stump, but hitting inside the line of the stumps is out. Yeah. But impact अंदर होना चाहिए. But टांग से अगर बाहर pitch होगी वहीं खत्म हो जाएगी. उसका जो लॉजिकल एक चीज़ है वो यही है कि आप एज अ बैट्समैन जब यहाँ से बॉल आ रहा है आपके, तो यू कैन प्ले दैट बेसिकली, और जब यहाँ से बॉल आता है तो वो बॉलर बेसिकली आउटसाइड द लेग स्टम्प आपके एरिया से बाहर से आ रहा था, और ये नेचुरल साइड नहीं है, तो कई दफ़ा उस तरफ खेलते हुए भी आप उसको मिस कर सकते हैं. आइडिया ये है कि यहाँ वाला बॉल आप टांग से नहीं रोक सकते, वो आप बल्ले से खेल सकते हैं. ये एक लॉजिकल चीज़ हो सकती है, बट आई थिंक फ्यूचर में जाके कुछ भी हो सकता है. नहीं, अगर दोनों तरफ से अगर आप आउटसाइड द लाइन पिच होगा और विकेटों को लग रहा होगा आउट देना शुरू कर देंगे ना, तो देन दैट मींस इट्स पहले ही बैट्समैन के पास एक बॉल है और फिर तो हाँ, देन इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. और थोड़ा सा नेगेटिव बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा जैसे टेस्ट मैचेस में शुरू हो जाती है टांग से, तो वो बहुत ज़्यादा, एंड स्कोरिंग बिकम्स अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट. I think Misbah, you're also sort of playing around your body on the leg side, and there is every chance that the ball will hit your leg more than the ball hitting. So basically इसीलिए this region जो ऑफ साइड है इसको बताया गया है कि you play in that line. इस लाइन से आप बल्ला बंद करते हो, there is a blind corner there, that's what they say. Once in some time you ball miss, और अगर इस तरह आउट देने शुरू हो गए तो फिर then the game, you know, वो चीज़ नहीं रहेगी. चांस है ना बॉलर के लिए भी और बैट्समैन के लिए. ये क्वेश्चन आया है इमरान खान से, उनका है IK इमरान खान 1947 ट्विटर हैंडल. What about Matthew Hayden? Should be PCB coach, keep him for permanent basis? इमरान, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों आपने क्वेश्चन पूछा है, एंड सेकेंडली जो हमारे कोच बैटिंग कोच स्पेशली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो गेम है प्रोड्यूस, मोहम्मद यूसुफ एंड सकलान मुश्ताक, उन्होंने पाकिस्तान को इतने मैच जिताए हैं कि आप सोच नहीं सकते. वो पिछले 1.5 साल से इस टीम के साथ लगे हैं और हमें सिर्फ हेडन नज़र आ रहा है. आई एम नॉट टेकिंग अवे हिज थंडर फ्रॉम हिम. ही इज़ बीन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बिकॉज ऑजी माइंड सेट, पॉजिटिव माइंड सेट, श्योर, बट लॉन्ग रन में आई सपोज उसके पास टाइम भी नहीं है. इज बिट बिजी, मे बी दैट्स व्हाई. मेंटोर ज़्यादा है उसका, बट आई थिंक ओवरऑल वो जो प्रेशर सारा लेना और इस टीम को बैक करना, यूं रिजवान और बाबर को भी इस सिचुएशन में बैक करना कि जब हर तरफ से बैशिंग हो रही है
और फिर मिडिल ऑर्डर को उस तरीके से सपोर्ट करना, आई थिंक दैट क्रेडिट शुड बी गिवन टू सकलैन भाई एंड मोहम्मद यूसुफ, क्योंकि बड़ा मुश्किल था यहाँ से आप एशिया कप फिर इंग्लैंड सीरीज़, उसके बाद जो सिचुएशन थी हर किसी ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप फिर वही टीम कैरी कर रहे हैं। तो आई थिंक वो कंसिस्टेंट रहना सिलेक्शन में, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना, अपने प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना, में भी रापेटर भी आता है, जो भी हैं जो भी सारे इन्वॉल्व है, जितने- सबकी तारीफ करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी में उन्होंने सबको बैक किया। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने सकलैन भाई के अंडर भी खेला, उनके साथ भी खेला है, तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कैप्टन को। और आई गेस क्रेडिट गोज़ टू यूसुफ भाई एज वेल, क्रेडिट इनफैक्ट गोज़ टू द होल मैनेजमेंट कि इतनी सारी सीरीज़ें भी खेलें, ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और आई गेस ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स एज वेल, इंशाल्लाह ब्रिंग द कप होम। आपसे सवाल है ये मिसबा, दिस इज़ कम फॉर यू, और ये मोहम्मद अफजाल पूछ रहे हैं आपसे, MOH अफजाल, मोहम्मद अफजाल कह रहे हैं मिसबा, इफ़ टुमारो फॉर इंग्लैंड और उनका जो सेमीफाइनल है, हाउ डज द इंग्लिश बॉलर न्यूट्रलाइज द थ्रेट ऑफ सूर्या कुमार यादव इन टुमारो सेमीफाइनल? आई थिंक मुझे लगता है कि वो पेस को अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अर्ली ऑन चलें, अगर आप पेस से, वो हमने पहले भी बात की थी कि ऑफ स्टम्प एंड फोर्थ स्टम्प से अगर आप उस खिंचा हुआ बॉल, स्पेशली जो वुड बॉलिंग करता है, वहाँ से अर्ली ऑन जो बाहर निकलता है जिसमें बहुत ज़्यादा विड्थ ना मिले उनको, दैट इज़ वन एरिया अर्ली ऑन जहाँ पे आप उनको कॉट बिहाइंड हो सकते हैं। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आई थिंक प्लान्स, जो फील्डिंग प्लान्स हैं उनके अगेंस्ट, फाइन लेग, स्क्वायर लेग का फील्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप फाइनर रखना पड़ेगा आपको। इवन जो स्क्वायर लेग का फील्डर है वो भी अंदर रखना पड़ेगा, ताकि वो पेस को पीछे ज़्यादा बिहाइंड द विकेट, जो स्क्वायर ऑफ द विकेट, लिटरली काइंड ऑफ बहुत ही फाइन होगी, बहुत ही फाइन पीछे बट थोड़ा सा बाहर, बट फाइन। नॉर्मली जो स्क्वायर लेग होता है वो आपका लेग एम्पायर के पीछे होता है, या इवन T20 में उससे भी बाहर होता है, उसको भी आपने अंदर रखना है, ताकि वो ये जो लैप शॉट है उसके बाद जो ये वाली शॉट वो बाहर उस गैप को वो स्प्लिट करते हैं, वहाँ पे उनको उनकी स्ट्रेंथ से हटाना है, कहीं और वो खेलने जाए। नॉर्मली आप मिड ऑफ आप एक चीज़ कर सकते हैं, स्पिनर स्पेशली मैं बात करूँगा कि अर्ली ऑन मुझे लगता है लेफ्ट आर्म स्पिनर भी कहीं ना कहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास है नहीं, पेस नहीं मिलती, तो वहाँ भी थोड़ा सा एक चीज़ कर सकते हैं वसीम भाई, बहुत अनयूजुअल है लेकिन करनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट, सिंस इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उसके लिए मोस्टली जब 6 ओवर्स हो जाते हैं और अगर कोई मीडियम पेसर या पेस बॉलर बॉल कर रहा है तो मिड ऑन पीछे रखता है, ये वाला जो फील्डर है, मिड ऑन का फील्डर आप ऊपर लाएं, मिड ऑफ का फील्डर आप पीछे लेके जाएं, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मिड ऑन के ऊपर से मैंने बहुत कम देखा है उसे खेलते हुए, वो खेलता है ओवर एक्स्ट्रा कवर, ओवर मिड ऑफ, या ये पीछे वाले फील्डर्स जो हैं जैसे स्क्वायर लेग है और फाइन लेग है, तो आई गेस मिड ऑन ऊपर ला के उसे वो जो जैसे मिसबा भाई कहते हैं लेंथ बॉल वहाँ पे मार के करें, ताकि उसे मजबूर करें कि वो फील्डर ऊपर है वो उसके ऊपर से मारे, तो फिर चांस है आउट होने का। Okay, what will be the future of the selection of these players? Khushdil, Haider Ali, Asif Ali. Question from all the legends. Mohammad Amjad Shamsi. Mohammad Amjad Shamsi ने सवाल पूछा है कि what will be the future of the selection of Khushdil, Haider and Asif Ali? Yeah, they are tried and tested players, just having a rough time. They'll be, I think, उसमें होने चाहिए आपके पूल में T20 के। ये नहीं कि उनको बिल्कुल आप भूल जाओगे। आसिफ ने अभी पिछले साल आपको मैच जिताए हैं 2 वर्ल्ड कप में, सो जस्ट वी हैव टू बैक देम अप। ठीक है, अभी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, दैट्स इट इन माई ओपिनियन, दे शुड बी कंसिडर्ड आगे फ्यूचर के T20 मैचेस में, T20 टूर्स में। इंजरीज भी आएंगी, इंजरीज के अलावा आपको बैकअप्स भी चाहिए होंगे, एंड दीज गाइज आर देयर। बिल्कुल, मेरे ख्याल में कंडीशंस के मुताबिक भी आपको देखना चाहिए कि कौन सा प्लेयर हमें कहाँ सूट करता है और वहाँ पे वो ज़्यादा अपोजिशंस को डैमेज कर सकता है। और जो मैं पहले भी बात कर रहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी वो कम बैक करते हैं या अभी वापस जाएंगे, उन एरियाज़ को जहाँ जहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं उन पे काम करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो फिर दोबारा आएँ तो वो जो पहले वाले एरिया जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम्स दोबारा उनको ना हो।
अदरवाइज वो दुनिया आपको एक्सपोज कर देती है, फिर जो एक छोटी सी भी आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ खामी ज़रूर है, जैसे हमारी स्ट्रेंथ्स हैं एज अ बैटर, हम उस पर काम नहीं करते हैं। तो अब ये ना हो कि जिन एरियाज़ पे उन्होंने आके काम करना है, बट जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनसे हट जाएं, उससे नहीं हटना। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उस पर भी प्रैक्टिस करते रहें, और आई गेस दे हैव ऑल द क्वालिटी इन देम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। All right, and with that, I think we're going to stop the Ask the Pavilion questions here. Now, we do have another very big semi-final tomorrow. That's India versus England. और क्या ही कमाल हो दोस्तों अगर फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का हो जाए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी क्या ख्वाहिश पे दम निकले। I mean, that just would be fantabulous. That'll be awesome. That would be awesome. For cricketing world, first time अभी जो मेलबर्न में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, close game. Yeah. 100,000 people Yeah. watching on the television and billion plus all around the world. Yeah. The writer who wrote my book, Gideon Haigh, he went first time to watch Indo-Pak game. Right. And he messaged me, he said, never seen atmosphere like this in my life. He's 50 plus, he's seen the Ashes, he's seen everything. He said, compared with Ashes, this was at least 100 times better as far as atmosphere concerned. And wouldn't it... Can I request both sides? Yes. India, पाकिस्तान के जो सारे क्रिकेट लवर्स हैं, यू गाइस लव योर क्रिकेट, रिस्पेक्ट रखनी बड़ी ज़रूरी है। बिला वजह एक दूसरे को पंगा करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियंस भाई अपने मुल्क के लिए पेट्रियाटिक हैं, हम अपने मुल्क के लिए बिल्कुल ऐसी। अगर वो जीते कंग्रेचुलेशंस कहें, वेल डन कहें, बैड लक कहें, बिलो द बेल्ट ना जाएं, बिकॉज हमारा कल्चर ये इजाज़त नहीं देता। बदकिस्मती से दोनों साइड पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसको बहुत वो है, और कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी हमारे जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, एंड दैट्स जस्ट नॉट नाइस। बट वकार, वुडंट इट बी स्पेशल कि 2 एशियन टीमें ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के फाइनल में होंगी? I mean, if that happens, wouldn't that be something just truly spectacular? Yeah, like Champions Trophy a couple of years back in England. Yeah. Pakistan played India, which Pakistan won. It was awesome. I mean, it's going to be, if that happens, it will be, mega event. कोई छोटा event नहीं होगा. Probably दुनिया ने ऐसा event पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि ये clash पहले हुआ नहीं है वर्ल्ड कप फाइनल का. क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स या राउंड मैचेस हैं, मतलब ये बैक एपिसोड है नहीं यार, क्या चीज? वो फिर 2007 की बात है, पीछे ले गया बात। ओह नहीं, बट आप सही कह रहे हैं वकार। But I mean, I'm talking about on the magnitude of the game, because you playing in Melbourne, और मेलबर्न में जो भी अभी आपने जिम्बाब्वे का इंडिया का मैच देखा, it was 100,000 people sitting there. So just imagine कि अगर इंडिया कल जीतता है तो अगले मैचेस की तो टिकट तो खैर आप भूल जाए ना, सोल्ड आउट हो गया, मिलने का चांस ही कोई नहीं। अब पाकिस्तानी, आई डोंट नो इंडियाज में क्या लॉ है ऑस्ट्रेलियन वीजे का, यहाँ पे नाउ डेज द क्यू इज सो मच कि किसी ने जाना हो परसों फाइनल देख लें, अगर वीजा नहीं है यू वोंट बी एबल टू। कुछ लोग हमारे वापस आ गए हुए हैं जो अर्ली परफॉर्मेंस देख के ना, कुछ लोग हमारे जानने वाले वो वापस आ गए हैं कि यार इन्ना तो कितने नहीं जाना, नाउ दे रिग्रेटिंग इट, दे वो टकरे मार रहे हैं दीवारों को। जी, मेरे भी एक दोस्त हैं, सादात सिंगापुर में होते हैं, वो भी छोड़ के वापस चले गए ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर। उन्होंने कहा ये तो मामला आगे नहीं जा रहा है। पाकिस्तान खेल रहा हो आखिरी मैच तक वेट करो, कुछ भी हो सकता है। You're right about that. और अगर ऐसा हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो सारे हलवाई ऐसे ही बुला रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान गेम में वो समर बैठा था हमारे पास, हमारा दोस्त मैच देख रहा था, he said इंडिया पाकिस्तान के मैच में एवरीबडी इज हैप्पी, चने वाला चने उसके बिक जाते हैं, हलीम वाले की हलीम बिक जाती है, एवरीबडी इज बिजनेस, एवरीबडी इज हैप्पी, the economy. Look at the impact of the game, India versus Pakistan. It cuts across all sections of society, and it really has a positive impact on the economy. 100,000 और 110,000 तो वहाँ पे स्टेडियम में देखेंगे ना, तो जो बाकी ऑन टेलीविजन देयर आर बिलियन पीपल तो इंडिया में है, वही कह रहा हूं, बिलियन तो इंडिया में है, फिर यहाँ मिलाएं, फिर ये जो हम बाकी हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इंग्लिश, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 2 billion here. They be all glued to the TV for that. You know what, we're going to talk about this game. It's England versus India tomorrow. But we're going to take a break right now, but when we come back, we'll talk about that game. Don't go away. Keep watching A Sports and 10 Sports.
Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. So great day for Pakistan today and the Pakistani fans all around the world. Congratulations Pakistan. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. Pakistan is through to the finals. मगर कल एक और बड़ा मुकाबला, एक और बड़ा टाकरा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. कल हम आपको लेकर जाएंगे एडिलेड जहां पर इंग्लैंड बामुकाबला इंडिया है. ये भी एक बहुत बड़ा मैच है and this is going to be a seriously explosive game of cricket because two very good teams are colliding for a place, that spot in the finals. Wasim, what do you think? Who has that outside edge in this game? It's difficult to say. Both teams, you said, the top teams of the world as far as ranking concerned. They have impact players. वहाँ से कोहली, स्काई, bowling उनकी ज़बरदस्त हर्षदीप कर रहा है. और इंग्लैंड का वुड, बटलर, you know, all these guys are dangerous guys. They can win game on their own. So it's very difficult to pick. Obviously, we're going to discuss every player matchups in the morning for a couple of hours in length. But right now, I think it's evenly poised both sides. It's difficult to pick favorite. Yeah. Misbah, for you? I think मुझे लगता है जो conditions हैं वहाँ की, जो venue है, उसमें slightly advantage जो है वो इंडिया के साथ है. Yeah. The way they are especially playing और उनका hunting ground है Adelaide हमेशा से. तो they'll be feeling comfortable, but again England वो भी बहुत dangerous side है. Obviously they are facing an injury also. David Malan he might miss out. So let's see. कैसे हुए? डेविड मिलान से कितना नुकसान होगा वकार इंग्लैंड को? मेरा नहीं ख्याल कुछ ज़्यादा नुकसान होना चाहिए. We'll talk about this tomorrow because उनके पास सॉल्ट बैठे हुए हैं who was in extraordinary form back in Pakistan just recently. So he might come in. I will look into it tomorrow we'll in have details. But detailed discussion. yeah, both are very good side. I mean पाकिस्तान न्यूजीलैंड जब आप बात करते थे तो आप कह सकते थे कि पिच देखने के बाद के पाकिस्तान को एज है क्योंकि कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती थी. ओवर देयर yes, conditions might suit India, but because those two teams are really well balanced, very well balanced. यहाँ पे Ben Duckett यहाँ पे ideal choice नहीं होता है डेविड मलान की जगह अगर स्लो पिच होती है और इंडिया के स्पिनर्स भी. But he's not in the squad. Yeah, I'm he's not not sure in the whether he is in the He's not in travelers. the squad. Yeah. But yeah, I mean मैं तो बहुत But पहले से already मैं पढ़ रहा था कि England media already is kind of Pitch के बारे में complaining थोड़ा, कि it's a used pitched. So I don't know why they're complaining. It's for both sides. वसीम भाई यूज्ड पिच तो अब आएंगी ना जब Yeah. आप वर्ल्ड कप इतना लेंथी वर्ल्ड कप खेलेंगे मैचेस क्योंकि ड्रॉप इन पिचें हैं कोई इतना बड़ा स्क्वायर तो होता नहीं है और उनकी यहाँ की बाउंड्रीज जो साइड वाली छोटी होती हैं तो इनकी पिचें लिमिटेड होती हैं तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको हर दफ़ा फ्रेश पिच मिलेगी. सो दे विल बी पिचेस लाइक टुडेज पिच फॉर एग्जांपल जो वो भी पिच यूज थी पिच ठीक है. इन्होंने ये वाली पिच जो एडिलेड में भी तो प्रेस ने कंप्लेन नहीं की neither न्यूजीलैंड I mean, it goes for both teams. They have raised the same thing during Champions Trophy as well when we played against England in Cardiff. Okay. So वो भी even that pitch was used. Right. So Okay. they raised the same thing at that time also. So I guess वो उनके लिए normal है. old habits die So hard. Shoaib, what are you looking forward to tomorrow? I guess if I look at both the squads, India has a complete squad in terms of their resources. Bowling ले लें, batting ले लें, लेकिन England की bowling जो है वो मुझे लगता है हल्की है. हल्की है उनकी bowling और वो that can be exploited और वो अच्छी फॉर्म में है बैट्समैन. अगर इंग्लैंड की बॉलिंग हल्की है अगर स्पिन बॉलिंग को इंडिया की स्पिन बॉलिंग भी देखी जाए तो वो चीज़ तो मुझे नहीं दिखी है वैसे to be very लेकिन honest. इंग्लैंड पे जब प्रेशर डलता है स्पेशली व्हेन दे बैटिंग सेकंड तो मैंने उनको क्रम्बल होते हुए बहुत दफ़ा देखा है वो चाहे टेस्ट मैचेस हों ओडीआई क्रिकेट हो या T20s हो. तो इसीलिए आई गेस जो स्ट्रॉन्ग है forget about the conditions. वो India looks like a complete team. Looking at the conditions, I think especially डेविड मिलान ऐसी सिचुएशन में स्लो पिचेस वो उनका रोल ही है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं कुछ कल स्पिनर्स भी को रख अच्छा लो. खेलते हैं. हाँ जी कुछ कल भी रख लो. उन्होंने रखे हैं समोसे जलेबियाँ. बड़ा कुछ है सर. ठीक है बहुत कुछ कल भी बहुत कुछ है कल भी बहुत कुछ है. एंड विद दैट आई थिंक कमिंग टू एन एंड ऑफ द डे हियर याद रहे कि कल हम लोग आपकी खिदमत में दोबारा 11 बजे बराह रास्त हाजिर होंगे विद द प्री मैच ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया. विद दैट thank you Shoaib, thank you Waqar. Oh, Waqar is taking out his glasses. Wasim has taken out his glasses, so I'm going to take out my glasses. Going home now. Oh yes, thank you Misbah, thank you Wasim, Thank you. and it's time for us to sign off in the pavilion. Celebrate.
and we are heading out for our celebrations. Okay. Stay We, safe. we might not come tomorrow. Okay, so Where are we wondering- going? Huh? Where are we going? तू दस दे हर चीज ही दसी थे. All right, folks. With that, we're going to sign off. Good night. Stay happy. Stay safe, and enjoy. We won. Good night.